Welcome back. Slipped a bit for the markets now, 52.06 from a high that we hit of close to about 52.43 thereabout. The Nifty and the Sensex, both of them have lost quite a bit. Nifty is down close to about 35 to 40 odd points. There has been a lot of weakness in power names. So Power Grid as well is down about 2.5%. Jindal Steel and Power has slipped about 3.5%. And some pressure is now showing in a few banking names. The State Bank of India, which was actually flat maybe an hour back, is now down about 1%. And heavyweights like Reliance Industries and ONGC too, with their 1.5% cut, are hitting the markets and dragging it a bit lower. For now, holding on to that 5200 mark. Broader markets too are slipping. So the Midcap Index, Nifty Junior, all of them are down close to about 0.5%. But this is our personal finance section. Our guest today is Hemant Rustogi. So let's straight away go across to our first caller. Lal Babu Sharma calls in from Mumbai. Hi. Hello. Hello. हाँ, लाल बाबू बोल रहा हूँ मैं. हाँ. मैडम मेरा रिक्वायरमेंट था 10 साल में 20 लाख रुपया चाहिए. अच्छा. तो मैं जीवन सरल में 1000 पर मंथ है, तो मुझे जरा बताइए कहाँ पे क्या कैसा करना है मुझे. आप कितना हर महीना डाल सकते हैं और आपकी कोई डिपेंडेंस है, आपका एज आप बता सकते हैं? एज मैडम 34 इयर्स है हमारा. हाँ. और 4000 5000 में डाल सकता हूँ. ओके. और आपके पास इंश्योरेंस है आपके बच्चों और उनके लिए? नहीं, बच्चों के लिए नहीं है, हमारा एक जीवन सरल है खाली. अच्छा, ठीक है. हेमंत, तो आप क्या एडवाइस देंगे? लाल बाबू, क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे वो है कि आप एक कॉर्पस बनाना चाहते हैं, आपने टारगेट रखा है 20 लाख का, और आपके पास जो समय है इन्वेस्ट करने के लिए वो 10 लाख है, और क्योंकि आप 5000 रुपीज हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपका जो फोकस है वो ऐसी एसेट क्लास जो होती है, ऐसी ऑप्शन पे होना चाहिए जहां पे आपको जो रियल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि जो रिटर्न जो है वो इन्फ्लेशन से ज्यादा होना चाहिए. तभी जाके जब हम इतने लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो हमको सही तरीके से फायदा होगा. तो यहाँ पे आप इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं. 2 फंड मैं आपको बता रहा हूँ. एक HDFC इक्विटी फंड है जो कि एक मल्टी कैप फंड है. इसका एक काफी लंबा एस्टैब्लिश ट्रैक रिकॉर्ड है, इसको आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं. और दूसरा फंड रहेगा ICICI फोकस ब्लू चिप फंड. जैसा कि नाम सजेस्ट करते हैं, ये उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिनको हम ब्लू चिप कंपनीज बोलते हैं. तो इन दोनों जो फंड्स हैं इनके अंदर आप हर महीने पैसा लगाइए. और जब आप SIP से इन्वेस्ट करें तो ध्यान रखिए कि दोनों की जो डेट्स हैं वो अलग होनी चाहिए, ताकि आपको जो वॉलेटिलिटी है, जो उतार चढ़ाव आपको दिखता है मार्केट में हर महीने के अंदर, उसका आपको फायदा हो. यहाँ पे अगर मैं 12% की एनुअलाइज रिटर्न अगर मान के चलो और आप 10 साल अगर ये पूरा समय अपना इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को जारी रखें तो करीब आपको 11 लाख रुपए का कॉर्पस बनेगा. तो आपका जो टारगेट है उससे काफी कम रहेगा ये. तो अगर उसको आपको अचीव करना है तो उसके लिए तकरीबन आपको 9000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करने पड़ेंगे. और यहाँ पे भी फिर हम 12% की अगर रिटर्न मान के चले तो आपको फिर 20 लाख का आप कॉर्पस यहाँ पे बना सकते हैं. बट आई थिंक one thing that I would like to mention for investors like Lal Babu and others who want to start process for investing for the long term, that there are few factors they need to remember and consider. One is a top priority has to be given to the risk management. Now, when we talk about risk management, we're talking about adequate insurance cover, and that should include one's life, one's health, as well as property. So, top priority has to be given to risk management. And when we talk about, let's say, life insurance, it has to be like there's a thumb rule which says that 10 times of your, annual income. So consider that. Second thing is, before you commit money for the long term, make sure that you have, develop or build an emergency reserve, which should be equal to 6 months of your monthly expenses. The objective here is that if there is an emergency, if you need money for a specific purpose, you can tide over the difficult time without disturbing your long-term investment needs. So I think before anybody who wants to start investing for long term, consider these 2 factors and then start investing. Fair advice, Hemant. लाल बाबू, अगर आप सुन रहे हैं तो आपको पहले आपके जीवन बीमा भी कर लेना चाहिए. आप एक प्योर टर्म इंश्योरेंस के जैसे हेमंत साहब ने बताया, और वो टोटल अमाउंट होनी चाहिए, इंश्योर्ड अमाउंट. आप 10 टाइम्स आपका एनुअल सैलरी, आपके एनुअल सैलरी के 10 टाइम आपको सम एश्योर्ड कर लेना चाहिए. और वैसे ही 6 महीने के आपकी जो इनकम है उसका भी एक पूंजी बनाकर रख लेना चाहिए. आप उसे कोई लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में डाल सकते हैं या कोई FD में, जो आप इमरजेंसी के तौर पर यूज कर सकते हैं. ये इसके बाद आप अपना सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू कर सकते हैं. ये आपको याद रहना चाहिए. ऑलराइट. ओके. Alright, our next caller is from Ahmedabad. Ashok Kumar joins us. Ashok Kumar जी, कहिए आपका सवाल क्या है?
अशोक कुमार। हेलो। हाँ कहिए अशोक कुमार जी, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये था कि 1 लाख रुपया मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ लमसम। हाँ। तो 10 साल के लिए मुझे इन्वेस्ट करना है ये। अच्छा, आप सिर्फ अभी के लिए 1 लाख लगाएंगे या हर साल 1 लाख लगाने के लिए तैयार हैं? नहीं सिर्फ नहीं, अभी एक साल के लिए है, अभी आगे का कुछ मालूम नहीं। ओके, और आपका कोई गोल है कि आपको ये पैसा 10 साल में किसके लिए चाहिए? आपको कितना पैसा मिलने का उम्मीद है? नहीं, बेस्ट रिटर्न चाहिए, ऐसा कोई गोल चाहिए नहीं किया है। ओके, well, best return. So you have an open question there, Hemant. He has 1 lakh. He wants to know how best to invest it. अशोक, मैं जानना चाहूंगा आप कुछ और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसके अलावा अभी म्यूचुअल फंड वगैरह में कहीं पे? मैंने 90,000 रुपया इन्वेस्ट कर रखा है। BSL फ्रंटलाइन इक्विटी में 20,000 है मेरा। HDFC टॉप 200 में 20,000 है। IDFC प्रीमियर इक्विटी में 20,000 और रिलायंस बैंकिंग फंड में 30,000। ठीक है, देखिए अशोक, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं आपको कहां इन्वेस्ट करना और किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आपने कहा कि आपका जो गोल है वो है कि पैसा बनाना है, वेल्थ क्रिएशन करना है। देखिए, एक ब्रॉडर गोल रहता है। सबसे जरूरी चीज है कि जिससे पहले आप इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने गोल्स को एस्टैब्लिश कीजिए। हम सभी के गोल्स रहते हैं, शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में, लॉन्ग टर्म में। जैसे शॉर्ट टर्म में हो सकता है हमें कुछ खरीदना हो, उसके लिए हो सकता है मीडियम टर्म में कोई घर खरीदना हो, या लॉन्ग टर्म में कुछ बच्चों की एजुकेशन, रिटायरमेंट के लिए। ये इसलिए जरूरी है कि जब आप अपने गोल्स को एस्टैब्लिश करेंगे तो उसके सामने आपको पता चलेगा आपके पास कितना समय है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम जैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे आपने कहा 10 साल का समय है, हो सकता है उतना या उससे ज्यादा आपके पास समय हो। तो अपने गोल्स को एस्टैब्लिश कीजिए, उनको एक टाइम होराइजन जो हम बोलते हैं, एक समय दीजिए। उसके हिसाब से फिर आप अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एक जिसको हम बोलते हैं एसेट एलोकेशन, वो सही मायने में आप एसेट एलोकेशन कर पाएंगे। यानी लॉन्ग टर्म का जो पैसा आपका इक्विटी में जाएगा, शॉर्ट टर्म के जो रिक्वायरमेंट है उनके लिए आप डेट में डालेंगे। तो एसेट एलोकेशन का फायदा यह है कि मार्केट में जितने भी उतार चढ़ाव हो, आप उससे घबराएंगे नहीं, आप अपना इन्वेस्टमेंट जो है जारी रखेंगे, और जो पैनिक में हम जो डिसीजन लेते हैं वो वैसा हम नहीं लें। तो मेरी आपको सलाह सबसे पहले यह है कि आप अपने गोल्स को एस्टैब्लिश कीजिए, हर एक को एक समय दीजिए। जहां तक इस इन्वेस्टमेंट का सवाल है, 1 लाख रुपए जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक लमसम इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं क्योंकि आपकी ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है, कुछ अच्छे फंड्स हैं आपके पास। तो मुझे लगता है जैसे HDFC टॉप 200 या IDFC प्रीमियर इक्विटी, उसमें से उसी में आप इस पैसे को इन्वेस्ट करें। क्योंकि आपके पास एक लमसम पैसा है, तो मेरी सलाह आपको ये रहेगी कि 50% जो इसका पैसा है वो आप लमसम इन्वेस्ट करें और 50% जो है वो सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करें। यहां पे एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। SIP उन इन्वेस्टर्स के लिए है जिनको एक हर महीने सेव करके एक कॉर्पस बनाना है, और STP उनके लिए है जिनके पास एक लमसम पैसा है लेकिन वो नहीं चाहते कि वो सारा पैसा एक पर्टिकुलर लेवल में मार्केट के पास जाए। तो आप एक किसी अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड जो है जैसे HDFC और IDFC के, वहां पे ये पैसा इन्वेस्ट कीजिए, आधा पैसा, और वहां से हर महीने जैसे आप SIP करते हैं वैसे सिस्टमैटिकली ट्रांसफर प्लान के थ्रू ये पैसा आप इन्वेस्ट कीजिए। और की फैक्टर ये रहेगा कि जैसे आपने समय बोला है 10 साल, तो फिर से उस समय को देखिए आपके अपना टाइम होराइजन आपके पास है कि नहीं। अगर है तो फिर इस इन्वेस्टमेंट को 10 साल तक जारी रखिए। Okay. Hemant, we are running out of time, but I have a very brief question. I mean, if you can answer it briefly. There are a lot of insurance companies which offer you this, save at one time a lump sum, and then, you don't look at us for the next 20 years or so. It always seemed a little unfair to me because, if I die in the 5th year or the 10th year, in the other policies, I would still make some money because I wouldn't have paid up so much. Is this upfront a good idea? No, I don't think, Lata. I don't think it's a great idea. The thing is that when we look at insurance, there are a whole lot of products which are available, and many a time we don't even consider what we want. That is what exactly I said in the beginning, that one must consider what you want to do, and then look at appropriate product. You can't be investing in any insurance product that comes by you. So I don't think investing lump sum or keeping for such a long time horizon as one time is a great idea. Thanks a lot, Hemant. We will, of course, thrash that idea in greater detail when we have time, especially for insurance products. Thanks a lot for joining us. And viewers, if you have any personal finance questions, do send us an SMS, type YM followed by a space, then your question, send it to 51818. For now, we'll be back after a break.